السلام علیکم. جسم میں موجود زیادہ تر سیلز روزانہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں جس طریقے سے انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. جیسے سوچیں یہاں ہے میرے پاس کچھ سیلز ادھر. یہ اسکن سیل یا جلد کا سیل بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ٹشو. جیسے جیسے یہ ٹشو بڑا ہوتا جا رہا ہے یہ مرے ہوئے سیلز کو ریپلیس کرے گا اور پھر سیلز میں ہوگا مائٹوسس, اور یہ خود کو کریں گے ریپلیکیٹ اور بنائیں گے دوسرے کی بہترین کاپیز, اور پھر ان میں ہوگا مائٹوسس. اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اب یہ کافی سارے ہو گئے ہیں اور کافی سارے سیلز موجود ہیں برابر میں بھی, تو اب یہ سوچیں گے کہ ہمیں اپنی گروتھ تھوڑی سی روکنی چاہیے. اسے کہتے ہیں کانٹیکٹ انہیبیشن, اور پھر یہ بڑھنا شروع کریں گے. اب سوچیں جیسے ان سب میں سے ایک کے اندر کوئی مسئلہ ہوا, جیسے اس والے میں, اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے یقیناً, اور یہ میں اپنے اندر دیکھ سکتا ہوں, اور پھر یہ خود کو مار دیتا ہے. بیچارہ یہ خود کو مار دے گا تاکہ جو آس پاس کے صحت مند سیلز ہیں ان پر برا اثر نہ پڑے. تو یہ خود کو مار لیتا ہے اگر یہ اس بات کی نشاندہی کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے, اور یہ ہوتا ہے ایپوپٹوسس کے ذریعے. اگر میوٹیشنز بھی ہو رہی ہوں تب بھی یہ سیل کا طریقہ ہے, اپنا ذاتی طریقہ ہے ایسا کرنا. اور صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے, اگر میوٹیشنز بہت انفریکوینٹ ہوں یا ایک تسلسل کے ساتھ نہ ہوں اور بہت زیادہ نہ ہوں یا کسی خاص تسلسل سے نہ ہو رہی ہوں, ہم اصل فریکوینسی کے بارے میں بھی کچھ خاص نہیں جانتے ویسے, لیکن شاید یہ مختلف ہوتی ہیں مختلف سیلز اور ٹشوز کے حساب سے. لیکن اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں تو 100 بلین کا آرڈر ہمیں ملتا ہے, 100 بلین نئے سیلز باڈی میں ایک دن میں. تو اگر میوٹیشنز ہو رہی ہیں صرف ایک دفعہ 1 ملین میں سے, تب بھی آپ کے پاس 1,00,000 دفعہ تو میوٹیشنز ہو ہی جاتی ہیں. ان میں کچھ ایسی ہوتی ہوں گی جو زیادہ اثر انگیز نہیں ہوتی ہوں گی, اور کچھ ایسی ہوتی ہوں گی ظاہر ہے کہ جن کا اثر بھی ہوتا ہوگا اور جو اثر رکھتی ہوں گی. تو تب سیل خود اس کی نشاندہی کر لے گا اور خود کو مار دے گا. یاد رہے ایک بات جو یہاں کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ سیلز باڈی کے کوئی بھی سیلز ہو سکتے ہیں. یاد رہے یہ ہمارے جرم سیلز نہیں ہیں, اور اسی لیے یہ میوٹیشنز یا یہ گڑبڑ جو ہے یہ آگے آنے والی نسل میں یا اولاد میں نہیں جائے گی. یہ سیل خود کو نقصان پہنچائے گا, مجھے کچھ حد تک نقصان پہنچائے گا, لیکن یہ میری اولاد میں آگے نہیں جائے گا کیونکہ یہ جرم سیل نہیں ہے. یہ باڈی میں موجود کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے کہ 100 بلین سیلز ایک دن میں, واقعی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے, لیکن اندازاً ہمارے جسم میں موجود ہیں 100 ٹریلین سیلز, اور اگر آپ اس سے تھوڑا حساب لگائیں تو ایوریج اگر دیکھا جائے تو ایک تو آپ کے روز ریپلیکیٹ کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سیل ایک ہی رفتار یا فریکوینسی پر ریپلیکیٹ کرے. کوئی سلو کرتا ہے, کوئی تیز کرتا ہے. اس سے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم کی ساخت کتنی پیچیدہ ہے. ہم بنے ہوئے ہیں 100 ٹریلین سیل سے, یعنی 1,00,000 بلین سیلز. یہ یہاں لکھتے ہیں, اور ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ایکو سسٹم ہے. یہ بھی یاد رکھیں, ایک کمپلیکس ایکو سسٹم اپنے نیوکلیسز کے ساتھ اور مختلف آرگنلز کے ساتھ. اور ہم نے بات کی ہے ڈی این اے ریپلیکیشن کی, اور کس طرح سیل جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے. تو یہ سب مذاق نہیں ہے, یہ بہت پیچیدہ ہے. یہ نہایت ہی پیچیدہ اسٹرکچرز ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف بھی ہے. تو اب اگر ہم بنا رہے ہیں 100 بلین نئے سیلز ہر دن, تو ہمارے پاس میوٹیشنز بھی بہت ساری ہوں گی, اور ان میں سے کچھ شاید کچھ نہ کریں اور کچھ کو سیل پہچان لے اور مار دے خود کو. لیکن بہت دفعہ ایسی میوٹیشنز بھی ہوتی ہیں جس میں سیل جو ہے وہ خود کو نہیں مارتا, اور یہ جو ہے یہ ڈی فارم کر دیتی ہیں سیل کو. تو سوچے جیسے یہاں ہے ہمارے پاس ظاہر ہے ایک سیل, اور اس میں ہوئی ہیں کچھ میوٹیشنز. یہ یہاں ہم دکھاتے ہیں ایکس بنا کر, یہ ہے اس کے ڈی این اے میں. اس میں شاید ایک سے زیادہ میوٹیشنز ہیں, جیسے جن میں سے ایک
इसे एपोप्टोसिस करने से रोकती है या खुद को मारने से रोकती है, और एक म्यूटेशन इसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करने पर मजबूर करती है। तो ये वाला सेल अब माइटोसिस के ज़रिए बनाता है अपनी थोड़ी सी कॉपीज़ या फिर बहुत सारी कॉपीज़। अब ये एक पूरा गुच्छा सेल्स का जिनमें है गड़बड़, जिनमें है डिफेक्ट, ये बने हैं इस सेल से जो ओरिजिनली या पहले से ही डिफेक्टेड था, और ये करते गए डुप्लीकेट। तो ये पूरा गुच्छा अगर आप इसे देखें बनिस्बत इस पास मौजूद टिश्यू के, तो ये जाहिर है कि नॉर्मल नहीं दिखेगा, ये एबनॉर्मल नज़र आएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं लगेगी। या तो ये सही तरह काम नहीं कर पाएगा या कुछ और होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसे कहते हैं नियोप्लाज्म। ये हम यहाँ लिखते हैं नियोप्लाज्म। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये ऐसा बड़ा सा गुच्छा ही लगें। ये कभी कभी किसी तरह जिस्म में सर्कुलेट भी करते हैं, घूम भी रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बनाते हैं ऐसा बड़ा सा एक लंप या एक गुच्छा, जैसा हमने पहले कहा। और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये तवज्जो ले सकते हैं आपकी, नोटिसेबल हद तक ये बड़े हो जाते हैं। और ये है वो स्टेज या वो मरहला जिस पर हम इसे कहते हैं ट्यूमर। तो ये है एक लंप, एक डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, जो कि लाजमी बात है कि एबनॉर्मल इसे हम कहते हैं ट्यूमर। अब ये दोनों लफ्ज़ साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, नियोप्लाज्म भी और ट्यूमर भी। ट्यूमर हम अक्सर आम फहम ज़बान में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर ये जो लंप है यहाँ पर, ये बढ़ जाए एक अच्छे बड़े साइज़ में, लेकिन ये खामोश है और कुछ ख़ास तंग नहीं कर रहा आपको, और ये आपे से बाहर भी नहीं हो रहा और पागलों की तरह रेप्लिकेट भी नहीं कर रहा और बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट नहीं कर रहा, तो बस ये मौजूद है खामोशी से, एक तरह से शायद थोड़ा सा बढ़ रहा है मगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, ना ही ये किसी ख़ास तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम इसे कहते हैं बिनाइन। ये होगा बिनाइन ट्यूमर या फिर बिनाइन नियोप्लाज्म, और इसका मतलब होता है हार्मलेस या गैर नुकसानदेह। तो अगर ये गैर नुकसानदेह है और ख़ामोश भी है और बराबर वाले सेल्स को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचा रहा किसी तरह, तो ये होगी अच्छी बात एक तरह से। अगर लंप मौजूद है भी तो भी ये ख़तरनाक तसव्वुर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये डीएनए म्यूटेशंस जो हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ जो हैं ये हैं बिनाइन, लेकिन इनमें से कुछ म्यूटेशंस ये एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएं बिल्कुल पागलों की तरह, और ये सिर्फ तेज़ी से बढ़ना नहीं शुरू होते बल्कि ये इन्वेसिव भी होते हैं, जिससे मुराद है कि इनको इस बात की परवाह नहीं होती कि आसपास क्या है। ये हर चीज़ में जाकर टकराते हैं और हर चीज़ में घुसते हैं। तो सोचें ये जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएं बहुत तेज़ी से, बहुत पागलों की तरह, और फिर ये इनफिल्ट्रेट करने लगें, ये इन्वेसिव हो जाएं दूसरी चीज़ों को आसपास, तो ये हैं ज़ाहिर है इन्वेसिव हैं। तो ये बढ़ना शिद्दत से और इन्वेसिव होना, और याद रहे ये अकेला नहीं है, इसकी डुप्लीकेशन है जारी, और ये एक तरह से टूटी हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ चल रहा है जो कि इससे रेप्लिकेशन करवा रही है। और यहाँ गड़बड़ होने के बायस म्यूटेशंस भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट, याद रखें म्यूटेशंस ज़्यादा फ्रीक्वेंट, ज़्यादा तेज़ी से हो सकती हैं। तो फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा उतनी ज़्यादा म्यूटेशंस होती चली जाएंगी, और हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी हों जो कि इन सेल्स को तोड़ दें और फिर ये टूट कर जाएं जिस्म के दूसरे हिस्सों में, और फिर जिस्म के वो हिस्से ये सेल्स लेना शुरू कर दें। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी ख़तरनाक बात की तरफ जा रहा है। अब ये जो टूटना है और दूसरे सेल्स का इनको लेना है, ये मरहला जो है ये है, इसे कहते हैं मेटास्टेसाइज्ड। आई थिंक ये मैंने सही बोला हो, मेटास्टेसाइज्ड, बिल्कुल ठीक है, मेटास्टेसाइज्ड इसको कहते हैं। ये जो सेल्स एकदम से यहाँ फैलना शुरू हो गए हैं पूरे जिस्म में, ये इस सूरत हाल का नाम है। और इन सेल्स को क्या कहते हैं हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये हरगिज़ इज़्ज़त और एहतराम नहीं कर रहे अपनी साथ वाले सेल्स की या
अपने एनवायरनमेंट की या माहौल की, और बुरी तरह कहना चाहिए कि बढ़ रहे हैं, और इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी नहीं हो रही है। यहाँ इन्वेसिव हैं ये, और ये क्राउडिंग कर रहे हैं दूसरे सेल्स में, और ये बहुत तेज़ी से म्यूटेट भी कर रहे हैं दीगर वजूहात की वजह से, क्योंकि ये जेनेटिक तौर पर बिल्कुल एबनॉर्मल हैं और बहुत जल्दी से काबू से बाहर हो जाएंगे और जिस्म के दूसरे हिस्सों को इनफिल्ट्रेट करना शुरू कर देंगे और इन्वेसिव हो जाएंगे। ये हैं कैंसर सेल्स। अब शायद आपको समझ में आए कि कैंसर का इलाज और इसको ट्रीट करना और सबसे पहले इसको डायग्नोज करना भी कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरह से कह लें कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का बैक्टीरिया नहीं है या एक तरह का वायरस नहीं है जिसको आप पकड़कर इसका इलाज कर दें। कैंसर एक पूरी क्लास है म्यूटेशंस की, जिसमें सेल्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और फिर इन्वेसिव भी हो जाते हैं, और फिर ये मेटास्टेसिस। आप शायद एक तरह के कैंसर को पकड़कर कहें कि ठीक है, इस म्यूटेशन को हम करते हैं, ये जो ख़ास किस्म की म्यूटेशन इसमें हो रही है इसको टारगेट करते हैं, जहाँ पर सेल जो है वो ऐसे दिख रहे हैं, इन्हें लें और मार दें। तो आप ऐसे इस वाले को मार दें या इस वाले को, लेकिन इनका डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम जो है वो किसी ना किसी तरह टूट जाता है, इसलिए इनकी म्यूटेशन जो है, ये गड़बड़ जो है वो जारी रहती है। तो अगर यहाँ जैसे एक म्यूटेशन का वर्जन किसी ना किसी वजह से बच जाता है और आप इसे नहीं मार पाते, तो यहाँ एक दूसरी किस्म का कैंसर देखने को मिलेगा और नई शक्ल जो है इसे मारना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कैंसर जो है एक तरह से कभी ना ख़त्म होने वाली जंग है, तो इसलिए इन चीज़ों को यहाँ रोका जाता है कीमोथेरेपी के ज़रिए, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं, और कोशिश की जाती है कि जो जड़ है इसको पकड़ा जाए और जो वजह बनती है हर किस्म के कैंसर का। और हम इस पर और बहुत लंबी वीडियोस बना सकते हैं जिसमें हम कैंसर को लेकर बहुत सारी गुफ्तगू भी कर सकते हैं कि किस तरह लोग इससे लड़ने की कोशिश करते हैं और किस तरह कोशिशें जारी हैं इसको ख़त्म करने की। इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि कैंसर जो है वो महज एक बाय प्रोडक्ट है टूटे हुए माइटोसिस का, या ज़्यादा बेहतर तरीके से कहें तो टूटे हुए डीएनए रेप्लिकेशन का। हमारे पास हैं ये तमाम सेल्स जो कि रेप्लिकेट कर रहे हैं ख़ुद को हर दिन 100 बिलियन के नंबर के हिसाब से, और बार बार कुछ ना कुछ टूट रहा है। आमतौर पर किसी गड़बड़ पर सेल इस चीज़ को खुद संभाल लेता है, लेकिन कभी कभी रेप्लिकेट करने लगता है और कभी कभी पागलों की तरह रेप्लिकेट करने लगता है। लेकिन अगर ये चीज़ नुकसान नहीं दे रही तो ये बिनाइन है, लेकिन अगर ये नुकसान पहुंचा रही है तो ये है कैंसर। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बला आखिर है क्या जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।